welcome to my channel. Hi, this is Romla Anand from Romla's Maths Academy. In my first video, I posted first part of quadratic equation from class 10. In this video, I'll start doing exercises 5D, 5E and 5F. So let us start solving quadratic equation by formula. In last video, I solved quadratic equation by factorization method. In this video, I'll start doing quadratic equation by formula. Now, if we have quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, then I have already told you it will have two roots. तो जो दो रूट होंगे वो रूट कैसे निकलेंगे, फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इसमें. और फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d. Okay, this is d. Okay, upon 2a. So let us start with exercise 5. Let's start from question 1 का 12th part. Okay, the given equation is this one. Okay, we have to solve this equation using formula. And what is formula? I have written already. X equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. But first of all, again we have to write the same process. First we will write comparing it with what? Comparing it with ax square plus bx plus c equals to 0, so that we will get the values of constants a, b and c. On comparing it with this equation, what we can see, x square से क्या मल्टीप्लाइड है, रूट 6. तो a इज इक्वल टू रूट 6. ओके, x से क्या मल्टीप्लाइड है, -4. देन b इज इक्वल टू -4. वी आर सिंपली कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस. ओके, c इज इक्वल टू -2 रूट 6. ओके, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज इन दिस फार्मूला टू गेट द रूट x. x इज इक्वल टू minus of 4 plus minus. Why we are putting plus minus? Because we will get two roots which is x from this quadratic equation. First we will get from using this plus sign, and second root we will get by using this minus sign. Okay, this is b square minus 4 का square minus 4a. 4 into a क्या है, रूट 6 है, और c क्या है, -2 रूट 6 है. We should always keep negative numbers in bracket to avoid any kind of confusion. Okay, 2 रूट 6. ठीक है, हमें क्या करना है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस. इट विल बिकम +4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 -4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाइड हो गया प्लस, और रूट 6 आपस में मल्टीप्लाइड हुए तो क्या हो गया, 6. तो ये हो गया 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 इंटू 6 48, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया. सो विल गेट दिस अपॉन 2 रूट 6. ओके, देन वी विल राइट 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64, और आप 64 का स्क्वायर रूट निकालने आता ही होगा, इट विल बी 8. ओके, so you will get 4 plus minus 8 upon 2 root 6. Again we will take the common. Here 4 is common, so we'll take the common and we will be left with 1 plus minus 2. Okay, upon 2 root 6. अगर हम बाहर ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 इसको घटा देगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके, तो ये हम रिमेन होते हैं 2 अपॉन रूट 6, और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस माइनस 2. ठीक है, हमने लेना है x इज इक्वल टू ये एक, हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस साइन लेके माइनस साइन लेके. तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ हम लेते हैं x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 6. हम पहला ले लेते हैं प्लस लेके 1 प्लस 2. ठीक है, और दूसरा ले लेंगे हम 2 अपॉन रूट 6 एक्स इक्वल टू, और ये हो गया 1 माइनस 2. राइट, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाता है, 2 अपॉन रूट 6 इंटू 3. ठीक है, तो ये क्या आएगा
6 अपॉन रूट 6, ठीक है। रूट 6 अगर 6 को कटाएगा तो क्या आएगा, रूट 6, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2 अपॉन रूट 6, ये हो गया 1/2 माइनस 1, so we are left with -2 upon root 6, but we can't leave under root in denominator. Okay, then what we will have to do, then we will multiply by root 6 in numerator and denominator both, so that there will be no under root in denominator. Okay, ये हो जाएगा -2 रूट 6 अपॉन 6, ठीक है। ये आपने कटा दिया तो यू आर लेफ्ट विथ रूट 6 अपॉन 3। तो x की जो दो वैल्यूज हो गई, वो एक तो ये रूट 6 हो गई और एक जो हो गई रूट 6/3 हो गया। अभी आप चाहो तो ये आंसर अंडर रूट में भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है। पर कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि गिव यू आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या इन डेसिमल, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा डेसिमल्स में, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। अभी लेट्स टेक क्वेश्चन 11. This is from 50. Question is, solve this equation by formula and give your answer to 2 significant figures. मतलब उनको आंसर पॉइंट में चाहिए, डेसिमल में चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग। पहले तो हमने इसको क्या करना है, ब्रैकेट खोल के इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख देना है। ये हो जाएगा x² माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, -3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग इट विद x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म से, सो दैट वी विल गेट a is equal to 1 and b is equal to what, -3, okay, and c is equal to -9. Okay, now we'll start doing using the formula, and I hope you all have remembered this formula, so you can speak with me also. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, now we'll start putting this value in this formula, so that we will get 2 roots of this equation means x. Okay, let's start. Minus b, minus of -3 plus minus under root -3 square minus 4 into 1 into minus of 9 upon 2 into 1, and what we will get, minus minus मिट हो गया, +3, okay, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ओके, -4 -9 का मल्टीप्लाई किया हुआ +36, ठीक है, विल गेट +36 अपॉन 2, ठीक है। 9 + 36 इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 45, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 45, एंड यू ऑल मस्ट नो कि स्क्वायर रूट ऑफ 45 क्या होगा, 3 × 3 × 5, 3 बाहर आ गया और 5 अंदर ही रह गया क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं बनता। तो विल गेट दिस स्क्वायर रूट एज 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन, ठीक है, 2। हमने सिंपली क्या करना है, 3 कॉमन ले लेना है और अपॉन 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, सो दैट वी विल लेफ्ट विथ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। नाउ वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x by what, by taking plus and minus sign separately. Okay, so let's start. X equal to 3/2, पहले हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 कॉमा 3/2, ये क्या होगा, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, पर उसको आंसर चाहिए डेसिमल में, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते थे, पर उनको आंसर चाहिए डेसिमल में। आई होप कि आपको, मान लो कि अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पता तो होगा, फिर भी मैं यहाँ एक बार बता देती हूँ। जैसे हमने किया 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये आया 1, 2 को फिर हम क्या करते हैं, इससे ऐड करते हैं, विल गेट 4। अब हमारा देखो ये नहीं आ रहा, हमें पॉइंट में चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ अगर पॉइंट हम लगाते हैं यहाँ तो 2 जीरोज उतार सकते हैं। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए आप 2 से, ठीक है,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड वी विल गेट 6. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 2 को हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा. यहाँ विल गेट 44 और हम यहाँ 2 जीरो उतार सकते हैं. अब हमारा कहाँ तक जाएगा, 3 टाइम्स. ठीक है, अभी हम माइनस करके देखते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद 131. सिंस इसको आंसर क्या चाहिए, केवल पॉइंट के बाद 2 उनको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे √5 का जो निकलता है स्क्वायर रूट वो होता है 2.23. ओके, आप इसको रफर में चाहो तो दिखा सकते हो. तो यहाँ हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ इरेज कर दिया है. यहाँ आपने क्या करना है, x=3/2 1 प्लस, एक बार प्लस के साइन के साथ लेना है, तो 2 पॉइंट हमने क्या आंसर लाया था 2.23 और दूसरा हमें क्या करना है 3/2 1 माइनस 2.23. ठीक है, ये हो गया हमारा 3/2, ये हो गया इंटू 3.23 और ये हमारा दूसरा हो गया 3/2. एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं और ये ब्रैकेट में आ गया -1.23. अभी हम मल्टीप्लाई करके इसे सिंपली डिवाइड कर देते हैं. तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 969. ओके, अपॉन 2. सिंपली यू कैन डिवाइड इट. 3/2 ये हो गया, हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 3.69 माइनस अपॉन 2. ठीक है, अब डिवाइड कर लो. Then here you will get and simply you can write 4.5 comma minus 4.9 comma minus 1.9 and here you will get two values of 5 की स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल सॉल्व कराती हूँ. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है कंडीशन a + b कान बी इक्वल टू 0 और a b कान बी इक्वल टू 0. पहले हमने क्या करना है, इनको इधर लाना और इसका पेयर हम इससे बनाएंगे, इसका पेयर हम इससे बनाएंगे ताकि क्वेश्चन करने में इजी हो. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. जैसे मैंने किया a/ax -1 और यहाँ मैं b को इसके साथ ले आती हूँ प्लस b/bx -1, तो मैं a को इसके साथ लाती हूँ और ये हो गया इक्वल्स टू 0. अभी अब देखो सिंपली इसमें एलसीएम ले लो ax -1. ठीक है, तो ये हो गया आपका a का a ही रह गया माइनस b इंटू ax -1. ठीक है, अभी हमने क्या करना है प्लस. सिमिलरली हमने क्या करना है, पहले यहाँ एलसीएम ले लो bx -1, तो ये हमारा सिंपली b ही रह गया माइनस a इंटू bx -1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारा हुआ a माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो हमारा है a माइनस ए बी एक्स प्लस b अपॉन ए एक्स -1. नाउ वी आर डूइंग दिस ब्रैकेट. ओके, b माइनस ए बी एक्स प्लस a अपॉन बी एक्स -1 इक्वल टू 0. आप देख सकते हो यहाँ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ भी है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स. तो सिंपली आप इसको यहाँ से कॉमन ले लो. ठीक है, आपने यहाँ इसको कॉमन ले लिया, तो अब आप क्या बचते हो 1/ax -1 प्लस 1/bx -1, राइट, इक्वल्स टू 0. और एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उसे जरूर देखिए. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको जरूर देखें. लेट्स स्टार्ट. तो एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल इसका जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये जीरो कैसे होता है, अगर ये जीरो होगा या ये जीरो होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ क्या हो गया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, और कोई एक जीरो होगा तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है. ठीक है, तो 1/ax -1 प्लस 1/bx -1
राइट, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाले को उधर ही रहने दो, माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू क्या करो उधर, इन दोनों को उस साइड ले जाओ, माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देना है और क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे ले आएंगे ए बी। और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ए प्लस बी कांट बी इक्वल टू 0, ए बी कांट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0/0 अगर होता तो ये नॉट डिफाइंड होता, ये डिफाइंड नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था। और सेकंड कौन सा है, ये 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपली इसको उस साइड ले जाओ, 1/ax-1 इज इक्वल टू माइनस 1/bx-1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो गया bx-1 इक्वल्स टू -1 इंटू ax-1, राइट। अब ये हो गया bx-1 इक्वल्स टू -ax और प्लस 1। ठीक है, हम सारे x वालों को एक तरफ रखते हैं, नंबर वालों को एक तरफ रखते हैं, तो ये हो गया bx प्लस ax इक्वल्स टू 1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। और हम यहाँ क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b इक्वल्स टू 2, तो विल गेट x इक्वल टू 2/a प्लस b। नाउ यू कैन सी वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ x, which one is this one is x इक्वल टू a, when we will get the answer x इक्वल टू 2/a plus b, x इक्वल टू a plus b upon ab। और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5e, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट मेथड। इसमें क्या है, ये जस्ट सिंपली क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले मेथड से इसको खोलिए, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 81 इक्वल्स टू 0। लाइक ये दोनों हैं, इनको ऐड कर लो और इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, 12x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। हम कोई भी इक्वेशन तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें से कॉमन डालें। इसमें कॉमन क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें सोचना चाहिए क्या कुछ कॉमन हो सकता है। कॉमन हो सकता है तो पहले आप कॉमन लो, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, अभी हमारे ये जो कॉमन हुआ है 4, वो क्या होगा, इक्वल के इस साइड आएगा और 0/4 हो जाएगा, और 0/4 क्या होता है 0। तो हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले आएंगे और ये 0 हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसको चाहो तो फॉर्मूले वाले मेथड से कर सकते हो, चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी होता है एंड प्रैक्टिस विल मेक यू मच बेटर, मच एंड मच बेटर। ओनली प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखो -18 और 1 का मल्टीप्लाई, -18 उसको -18 को ऐसे तोड़ो कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर जो आए उनका मल्टीप्लिकेशन जो -18 है और उनका ऐड या सब्ट्रैक्शन जो है वो +3 है। जैसे -18 है, -18 इंटू 1 क्या हुआ -18। तो ऐसे नंबर भी तोड़ो, ये -18 आया, तो आप ये देखो 6 इंटू 3 कर लो। 6 इंटू 3 क्या होता है 18, तो -6 इंटू 3, लेकिन हमें यहाँ प्लस लाना है, तो 6 इंटू -3। ठीक है, तो हम ऐसे तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन लिया, x प्लस 6, हम यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, x प्लस 6x एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एज पर 0 प्रोडक्ट रूल, या तो x प्लस c इक्वल्स टू 0 होएगा और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होएगा। ठीक है, तो यह सॉल्व करो, तो x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 3। आप कोई भी दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला वाला या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो ये क्वेश्चन सॉल्व। और मेथड है, इस साइड स्क्वायर है, तो ये 81 किसका स्क्वायर होता है, मान लो ये है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है
बताओ। +-9 का, डोंट फॉरगेट, ये +-9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे ये वाला मेथड भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड का अंडर रूट निकालते हैं। तो क्या होएगा, स्क्वायर रूट निकाल दो, तो यहाँ पे स्क्वायर गया, यहाँ भी गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 2x + 3 इज इक्वल टू +-9, क्योंकि -9 का भी स्क्वायर क्या आता है, 81 ही आता है, +9 का भी 81। तो कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, केवल 9 का स्क्वायर कहते हैं, 9 का स्क्वायर नहीं है, +-9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम एक बार प्लस वाला निशान लेके सॉल्व करते हैं, और एक बार माइनस, सो दे विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू -9, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और सिमिलरली ये क्या हुआ, अभी हम आपने ये भी सॉल्व करना है, 2x इक्वल टू -9 एंड -3 एंड यू विल गेट -12, 2x इक्वल टू -10 एंड वी विल गेट x इक्वल टू -12/2 एंड वी विल बी लेफ्ट विथ -6, ठीक है। तो हमको दो आंसर मिला, एक हुआ x की वैल्यू 3 हुई, एक x की वैल्यू -6। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप ले सकते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज इन दिस फॉर्म। आप यहाँ देख सकते हैं ये x की पावर 4 है, जबकि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की पावर 2 होगी, तभी उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं, सिंपली x² = y हम मान लेते हैं, ठीक है। मैथ्स के मोस्ट के क्वेश्चन मान लेते हैं सही होता है, तो ठीक है, हम यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं, तो वी विल गेट 2y² - 5y + 3 = 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको किस फैक्टराइजेशन मेथड से या फार्मूला मेथड से, जो आपको इजी लगे। मैं यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ। 3 × 2 6 को ऐसे तोड़ना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5y, तो 3 2 जा होता है ना, तो 3 और 2 ले लेते हैं, -3y और -2y, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, y, तो वी आर लेफ्ट विथ 2y - 3 है, ये -3 हुआ, यहाँ -1 कॉमन लेंगे ताकि इस ब्रैकेट में भी सेम टर्म ही आए, ठीक है। 2y - 3 = 0, तो वी आर लेफ्ट विथ y - 1, 2y - 3 = 0 एंड इन द सिमिलर वे जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से y - 1 = 0 और 2y - 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया, तो वी विल गेट y = what 1 एंड यहाँ पे आप 3 को उधर ले जाओ, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हमें आ गया y = 3/2। अभी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमने तो x² को y मानना था। अब हमको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। जब y = 1 है तो x² = y लिया था ना, तो x² क्या हो गया, 1, ठीक है। और यहाँ y = 3/2 है, तो x² = y लिया था, तो x² क्या हो गया, 3/2, राइट। हमको दो सेपरेट उसमें हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, x² - 1 = 0 कर लो। तो ये क्या आपको दिख रहा है, a² - b², ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का। तो आप इसको कैसे तोड़ते हो, a² - b² को, एक ब्रैकेट में a + b आ जाता है, एक ब्रैकेट में a - b हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया x + 1, ये हो गया x - 1 = 0, ठीक है। ये हमारा सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, x² - 3/2 = 0, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में आप ये किसका स्क्वायर हो गया, √3/2 का, किसका स्क्वायर है ये, x² - √3/2 का, मान लो ये स्क्वायर है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको a² - b² के फॉर्म में तोड़ने के लिए, ठीक है। मैं अब इसको यहाँ पे करती हूँ, तो ये हमारा हो गया x + 1 × x - 1 = 0, हमारा साथ साथ में चलता रहेगा। ये हो जाएगा एक में, एक ब्रैकेट में x + √3/2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - √3/2 = 0। अब हम जीरो प्रोडक्ट रूल से, ये = 0 और ये = 0, तो x + 1 = 0 और
x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज क्या क्या आई, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, और यहाँ क्या हुई x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 और x इक्वल टू क्या आया माइनस 1 हो गया, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 3/2, यानी कि हमें x की कितनी वैल्यूज मिली 1 2 3 एंड 4। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 4 थी, तो जितनी पावर होगी उतनी ही वैल्यूज मिलती हैं। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो इसमें भी हमें मानना ही पड़ेगा कि ये इज इक्वल टू y क्या है, इसमें हम मानेंगे ये पार्ट। तो अगर मान लो ये x प्लस 1/x है, मान लो किसी क्वेश्चन में ये x माइनस 1/x हो, तो भी हम सिमिलर प्रोसेस ही करेंगे। x प्लस 1/x को हमने क्या कर दिया, लेट इक्वल टू y मान लिया। अब हम दोनों साइड का क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो विल गेट x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इंटू ए बी, हाँ x इंटू 1/x इक्वल टू y स्क्वायर। अगर x माइनस 1/x है तो ये सिमिलर प्रोसेस में चलेगा, बस यहाँ -2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये गया ये प्लस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें इतना चाहिए और इसको 2 को उधर कर देंगे, तो विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हमारी ये जो वैल्यू आई है हमने बस इस इक्वेशन में पुट कर देनी है टू मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट पुटिंग। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्या हो जाएगा y, हमने माना था इसको, ठीक है 11, ठीक है। हम सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0, 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप जिस भी मेथड से करना चाहो उसको सॉल्व करो। 30 15 टू 30, ऐसा क्या करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 30 का जो है वो -1 आए, तो हमने क्या करना है 6 और 5 ले लेते हैं, -6y प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे, we will be left with y minus 3 plus 5 and y minus 3 equals to 0. Now you can see y minus 3 एक ब्रैकेट में हो गया और 2y plus 5 equals to 0 ये एक ब्रैकेट में हो गया। एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल हमें क्या करना है, y minus 3 equal to 0 और 2y plus 5 equal to 0। तो हम देखते हैं यहाँ y is equal to 3 और क्या हो जाएगा, ये उधर गया तो y इक्वल टू -5/2, ठीक है। पर हमारा तो y था ही नहीं, हमारा तो इक्वेशन ये था जिसको हमने खुद माना था। हमने क्या करना है, अब इसको 2 पार्ट में फिर से ले लेना है, और अगर y इक्वल टू 3 है तो हमने क्या माना था, x प्लस 1/x इक्वल टू y, तो x प्लस 1/x को हमने क्या कर लेना है सिंपली 3, और यहाँ भी y इक्वल टू अगर हम -5/2 ले लेते हैं तो x प्लस 1/x इक्वल टू -5/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, फिर हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन इट इज कन्वर्टिंग इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी हम इसको भी ले लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -5/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -5x, ठीक है। सबको इधर लाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आप क्या देख रहे हो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। हमें अब जगह चाहिए तो मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया है। अब हम इसको इस साइड करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए था। अब देखते हैं ये इक्वेशन जो है
ये फार्मूले से ही सॉल्व हो पाएगा, ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको फार्मूले से सॉल्व करना है। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे सेम क्वेश्चन 10 बार करें, पर फॉर्मूला हमेशा जरूर लिखें। और मैंने क्या बताया हुआ है, कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आपने जब कंपेयर किया तो आप देखते हो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। कंपेयर करके पहले वैल्यूज लिख के फिर आप स्टार्ट करो, तो यू विल गेट दैट। देखो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ओके अपॉन 2 इंटू 1। आप क्या देखते हो, +3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है 9 माइनस 4 क्या होता है 5, 3 प्लस अपॉन 2। ये आपके एक्स की दो वैल्यूज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। तो आप एक वैल्यू क्या ले लोगे, प्लस के साथ ले लो 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और एक वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। अब हम इस पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो फार्मूले मेथड से करो, चाहो फैक्टराइजेशन मेथड से करो। इस साइड को मैं फैक्टराइजेशन से कर देती हूँ, 2 2 4, ठीक है। 4 को ऐसे तोड़े कि 5 आ जाए, तो सिंपल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बचा क्या, x प्लस 2, यहाँ आपने 1 कॉमन ले लेना है ताकि यहाँ सेम चीज कॉमन बचे। आपका हो गया 2x प्लस 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू हो गई 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू -2। और आप देख सकते हो x की हमें कितनी वैल्यूज मिल गई, 1 2 3 एंड 4। दिस इज योर आंसर, क्योंकि ये जो था इसमें x की हम देखते हैं एलसीएम लेके, तो ये x की 4 पावर आती है, इसलिए इसमें x की 4 वैल्यूज होंगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 8 फ्रॉम 5 है। कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट जो पार्ट है इसमें x बिलोंग्स टू i मींस इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और 0 वो सारे मिला के इंटीजर होते हैं। और x बिलोंग्स टू q मतलब रैशनल है, रैशनल नंबर मतलब a/b के फॉर्म में, मतलब रेशियो के फॉर्म में, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 8 3 24, 24 को तोड़ो ऐसा कि उसका प्लस या माइनस -14 आ जाए, ठीक है। तो 24 मतलब 12, 2 भी 24, तो 12 और 2 ले लेते हैं, ठीक। 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4x ये हो गया 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया आपने, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो दैट यू विल गेट 4x माइनस 1 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में एज पर 0 प्रोडक्ट रूल, अदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 1, सो दैट x इज इक्वल टू 1/4 और 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। ये देखिए, अब आपके पास 2 आंसर्स है। ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की 2 वैल्यूज होंगी। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू i इंटीजर, पर ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, सो तो फर्स्ट का क्या होगा, नो रिजल्ट या नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप नो सॉल्यूशन लिख दोगे क्योंकि यहाँ कोई भी इंटीजर नहीं आया। और सेकंड में क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, तो सेकंड का दोनों ही आंसर होगा क्योंकि x बिलोंग्स टू q है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड। ये क्वेश्चन दी हुआ, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। हम सिंपली इसको एलसीएम लेंगे, नॉर्मल सा सिंप्लीफाइड कर देंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है 1200 प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1260, ठीक। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x माइनस 10, ठीक है, इंटू 1200 प्लस
2x अपॉन x इक्वल टू 1260, ये इधर जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1200x माइनस 12,000 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 1260x। सबको मिक्स तरफ लाते हैं, तो ये 1200x माइनस 20x हो गया 1180x। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म, 2x स्क्वायर प्लस 1180x माइनस 12,000 माइनस 1260x इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं बिना हम कॉमन लिए स्टार्ट नहीं करते, यहाँ कॉमन क्या होता है 2, तो हमें क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है। तो वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 इक्वल के जो 0/2 हुआ और 0 हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000। अगेन आप चाहो इसी मेथड से करो, मैं अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से करती हूँ। देखो 6000 इंटू 1 क्या हुआ 6000, तो 6000 को ऐसे तोड़ो कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 40 है, तो आप सिंपली 100 इंटू 60 ले लो। ठीक है, और 100 को माइनस ले लो, 60 को प्लस ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा x कॉमन हो गया, x माइनस 100 प्लस यहाँ से 60 कॉमन ले लो ताकि ब्रैकेट में सेम टर्म्स ही आए। अब हमारा हो गया x प्लस 60 एक ब्रैकेट में, x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 100 इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 60 और x इज इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स इट विद दिस चैप्टर। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सारे एक्सरसाइजेस कवर कर लिए हैं एंड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करोगे तो आप देखो मैंने सारे वेराइटी के क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। और इसके बाद भी आपको डाउट होता है तो कैन कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। In next video, I will come up with a new lesson for class 10. Till then, stay tuned, take care and have a great day.